Okay, so the recording has started. You can put your attendance and let me know that my screen is visible to you as well. Okay, I have started presenting my screen. All right, fine. So first of all, students, I'm really sorry for yesterday because I was facing network issues and that's why I couldn't join at all. All right. So if you remember, okay, thank you. So if you remember, uh, all right, everyone done with the attendance? I guess so. Yeah, fine. Everyone is done with the attendance. So if you remember, in the last class, we have seen this topic, that is degree of given polynomial, and I hope you guys are very confident about how to guess the degree of polynomial, right? So in today's class, what we are going to do, we are going to take the next topic. We are going to revise anything. All right. All right, fine. So everybody is confident about whatever we have learned. That is really nice to see. All right. So our fifth question is, classify the following polynomials as linear, quadratic, and cubic polynomial. So very easy question, right? So this question will be done by you only. How you will do it? You will, let's see, for first question, which polynomial it is? It is, I guess, quadratic polynomial, right? Its degree is 2, no? So it is quadratic polynomial. So you will write for first, it is what? It is quadratic polynomial. I have written in the chat box, as you can see, right? So it is quadratic polynomial. Now second one is what? Everyone should tell me. Second one, it is linear polynomial, L. Okay, give the number also. All right, so I will understand that this answer is for this question. All right, now please tell me, students, third one, what about third one? Third one is again linear. Are you sure, everyone? Third one is linear? I don't think so. Is it a polynomial? First question is it a polynomial? Like there is under root 2 is there, 1 by 2 is there. So is it a polynomial? Okay, yes, everybody is saying yes. All right, so it has to be a polynomial. How? Because how we decide which one is polynomial and which one is not? हम कैसे decide करते हैं कि कौन सा equation polynomial है और कौन सा equation polynomial नहीं है? We check the degree of variable, right? So for third question, what is degree of variable? Variable is y. What is degree? What is power of variable? What is power of variable, students? Degree of this polynomial. It is 1. All right, it is 1. So it is a whole number, right? If the degree of variable is or the power of variable is whole number, that is a polynomial. Very good. Now, fourth one. Tell me fourth one. Fourth one is what? सब लोग बताओ, what is fourth one? Okay, Kadambari says it is cubic polynomial. All right. So fourth one is cubic polynomial. Very good. Fifth one. Fifth one is again which one? Fifth one is quadratic polynomial. All right. Okay, very good. विशाल, कादम्बरी, आयुष, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? वैष्णवी, विनीत, वेदांत आंसर दे रहे हो ना? वेदांत hasn't given a single answer. Everyone should give answer. Okay, now Vedant has given the answer. All right. Now last one, that is sixth one. Which polynomial is it? Sixth one. Sixth one is again cubic polynomial. All right. So you students are you have become now pro in the polynomial chapter. You can guess anything and you can solve any question, isn't it?
Yeah, very good. I'm very happy to see that. Now, sixth one, write the following polynomials in standard form. So, do you students remember we had three forms? हमारे हमने तीन फॉर्म्स सीखे थे. कौन से फॉर्म से कोई बताएगा माइक ऑन करके कि सर ये फॉर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल के? कोई बताना चाहेगा माइक ऑन करके? Which forms are there? All right, Kadambari, go ahead. Yes, sir. Standard form, coefficient form, and index form. Very good. Okay, see, standard form, coefficient form, and index form. So you have told the names correctly, but the sequence is wrong, right? Okay, first of all, we have to remember standard form. Second, it should be index form, and lastly, it should be coefficient form. But you tried very well. Okay, तुमने आंसर बहुत अच्छे से दिया. Okay, लेकिन ये सीक्वेंस याद रखना है. Is there any kind of a, okay, disturbance from my side in my voice? Can you please confirm? Or my voice is clear? Okay, okay, all right. No, चलो एक से confirm. Yeah, clear. All right. So मतलब आप लोगों को पॉलिनोमियल के फॉर्म तो याद है. तो अभी हमें करना क्या है इस सिक्स्थ क्वेश्चन में? हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हर एक पॉलिनोमियल को. ओके, सो हाउ डू वी राइट इट? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब लिखते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं? वी जस्ट अरेंज द पॉलिनोमियल in descending orders of power, right? So if I want to write this polynomial in standard form, which one? First one. So how I will write it? See, this one. So it should be written as m cube plus 5m plus 3. Right or wrong? This is the standard form. Correct. We just have to rearrange it. But in index form, let us suppose I want to write this in index form. So how I will write it in index form? I will write it like this. See, m cube, we don't have m square term, so I will add 0m square plus 5m plus 3. This is what? This is index form, and this is standard form. Okay, so this is the difference. Now can you write the last one? Yeah, obviously you can write. What you have to do, you have to just rearrange in the descending order of powers. So here y raised to 5 will come first, y raised to 4 will be second, y cube will be the third term, and y square will be the fourth, and this one will be the fifth term, and this one will be sixth term. Okay, so this is how we can rearrange the polynomial. All right, good. Now, seventh question. Write the following polynomials in coefficient form. So, to write the polynomial in coefficient form, first of all, first thing we do is we write it in its standard form. हम उसे standard form में लिखते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करते हैं? उसे इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, और इंडेक्स फॉर्म में लिखने के बाद में, ओके, कादम्बरी हैज रिटन इट आल्सो. वेरी गुड. ऑल राइट, फाइन. सो only 1 by 2 is remaining, Kadambari, but that's fine. Okay, okay. So focus on seventh one now. We have to write it in its coefficient form. So how do we write it? For first one, let me just write. This is first one. Okay, so इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें we have to, first of all, it is already in standard form. Okay, it is already in standard form, so we don't need to write it in standard form. All right, we just have to write it in index form. How do we write it? See, x cube, x cube is there. Okay, x square term is not present, so 0x square plus 0x, x term is again not there, and minus 2. So this is its index form. Now coefficient form will be 1 comma 0 comma 0 minus 2, right? So this is coefficient form. Now I have written for first one. For second one, third one, fourth one, you people will write. चलो लिखो, सब लोग लिखो. Everyone please write in the polynomials in its coefficient form
for this one and this one, and give numbers. आंसर को नंबर भी देना है. ओके, चलो, somebody has written second. Okay, 5 and 50. So Kadambari and Vishal, which one is correct? Your answer is correct, or the answer given by Ayush, that is correct? Think about it. Okay, so only Ayush has given answer as 50. Can you think why he has given the answer like that? Whether it is right or wrong, tell me. किसी ने ऐसा सोचा कि आयुष ने जो आंसर लिखा है, सब लोगों ने आयुष का आंसर देखा, आयुष मेहता का 50 लिखा है. एवरी पॉल जीरो इज एवरी पॉलिनोमियल. ओके, ऑल राइट. Okay, now Vedant has also written 50. Students, it is 50 only. Okay, it is not only 5, it is 50. See, this is coefficient of y raised to 1, that is 5. We have to write coefficient of y raised to 0 also. Okay, so everyone correct your mistake, write 50. Okay, chalo, no problem. Now write this one into coefficient form. नंबर डालना है जब भी आप आंसर लिख. You have to write number for each answer. Okay. विनीत, क्या लिखा है तुमने? ये 2 3 क्या होता है? 2 3 7. वेदांत, गलत लिखा है. कोई सही लिख रहा है क्या? लिखो. थोड़ा सा जूम करता हूं मैं अगर तुमको दिखाई नहीं दे रहा है तो. ओके, सी, नाउ सी क्लियरली एंड टेल मी द आंसर. ओके, आयुष गोयाजी हैज रिटन 20307. एक छोटी सी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो अभी भी. आयुष मेथा ने बराबर लिखा है, लेकिन 7 और 3 को एक्सचेंज कर दिया. ओके, सो कादम्बरी और आयुष, तुम लोगों ने जो लिखा है ना, उसमें -3 होना चाहिए. 2, 0, -3, 0 एंड 7. ठीक है, तो -3 लिखना है वहां पे. लास्ट वन, फोर्थ वन. फोर्थ वन का लिखो सब लोग. वेदांत, 2 0 -3 0 एंड 7 भी लिखना है वेदांत. ठीक है, 5 टर्म्स है ना वहां पे. देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये हो रहा है. ऑल राइट, सी, ये 2 रेस टू m रेस टू 4 है. एम क्यूब की टर्म नहीं है तो हम 0 m³ ऐड करते हैं, राइट. उसके बाद में हमारे पास एम स्क्वायर की टर्म है, दैट इज 3m². नाउ m की टर्म नहीं है तो हम 0m ऐड करेंगे, और एट लास्ट वी हैव 7. सो दिस इज 2 0 -3 0 एंड 7. सो दिस इज करेक्ट आंसर. ठीक है, इस तरीके से लिखना है सब लोगों ने, गलती नहीं करनी है. फोर्थ वन नॉट अंडरस्टैंड. आयुष, तुमने आंसर सही लिखा ना? ओके, फोर्थ वन नॉट अंडरस्टैंड. ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ वन. ऑल राइट, सो फोर्थ वन तो इजी है ना. इसे कोएफिशिएंट फॉर्म में हमें ऐसे ही लिखना है. दैट दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म, दैट्स इट. एक्स रेस टू जीरो या फिर वाई रेस टू जीरो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे. दिस इज कांस्टेंट ओनली ना, इज इट? या, सो दैट इज द आंसर. जो हमें क्वेश्चन है ना, वही आंसर है. ठीक है,
हमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। सर इन द फोर्थ वन जीरो विल कम और नॉट? नो, नो वेदांत, फोर्थ वन में जीरो की जरूरत नहीं है हमें। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि सी व्हाट वी डू, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लाइक एक्स रेस टू 5 है, तो एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 3, 2, 1 एंड 0 तक हम लिखते हैं, बराबर। जीरो के बाद हम नहीं जाते, -1 -2 नहीं जाते। तो यहाँ पे पहले ही एक्स रेस टू 0 है, तो यहाँ पे हमें कोई टर्म ऐड करने की जरूरत ही नहीं है ना। दिस इज द लास्ट टर्म। एक्स रेस टू 0 की जो टर्म होती है वही लास्ट टर्म होती है ना, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप फोर्थ वन इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, सब लोगों को समझ में आया? सब लोग कंफर्मेशन दो। ऑल राइट, वेरी गुड। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग। Next question is eighth one, that is write the polynomial in standard form. So how do we write it in standard form? अभी हमें यहाँ पे उल्टा करना है, मतलब पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखा, अभी कोएफिशिएंट फॉर्म से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो किस तरीके से लिखोगे स्टूडेंट्स? आप देखो, यहाँ पे हमें यहाँ से शुरू करना है। ओके, 3 + 2x + x², दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सबको सबको समझ में आया मैंने किस तरीके से इसे लिखा? सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सो ये मैंने जो लिखा यहाँ पे, जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो आपको सबको समझ में आया ना कि 1 2 3 है। तो 3 क्या रहेगा? 3 रहेगा कोएफिशिएंट, 2 जो है वो रहेगा x का कोएफिशिएंट, और 1 जो है वो रहेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इस तरीके से मैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ। अभी सेकंड वन वाला कौन लिखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में? हु विल राइट सेकंड वन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में नहीं। Okay, Vedant is writing like -1, 5x - 1. Okay, sir, in my book there is index form. All right, so you can write it in index form as well. Okay, हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ओके, सो देयर शुड नॉट बी मच कंफ्यूजन। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता, सॉरी इंडेक्स फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में? हम इसे -1 रहेगा एज इट इज, सॉरी -1 रहेगा एज इट इज, उसके बाद में हमें ऐड करना है 0x, उसके बाद में हमें ऐड करना है 0x², उसके बाद में हमें फिर से ऐड करना है 0x³ एंड एट लास्ट वी हैव 5x⁴. So this is index form, students. Okay, this is index form. Now standard form will be, इन zeros को हटा दो, उड़ा दो, उनको नहीं रखना है हमें यहाँ पे। So x⁴ - 1, this is standard form. ठीक है, ऑल राइट, आई होप सबको समझ में आ गया है। ऑल राइट, लास्ट वन, हाउ डू वी राइट लास्ट वन नाउ? 2, यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ साइन प्लस है ना तो प्लस लिखेंगे हम। -2x, यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, तो +2x² -2x³ मैंने तीसरे के लिए लिखा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म दोनों भी है इसका। ओके, साइन का ध्यान रखना है। ओके, वेदांत इज हैविंग डाउट। वेदांत, यू कैन टर्न ऑन योर माइक, नो प्रॉब्लम। Sir, so the answer of second will come 5x - 1 or 5x⁴ - 1? It will be 5x⁴ - 1. 5x - 1 is not correct answer. Okay. Yeah. So clear? Clear for third one also? Okay, fine. Good. So the last question, I think it is last. No, it is. Oh yeah, it is last one. So what we have to do here, we have to categorize these polynomials according to their group. So
quadratic polynomial should be written here. So which is quadratic polynomial? Quadratic polynomial is, I guess, this one is quadratic polynomial. This is a quadratic polynomial, and this is a quadratic polynomial, right? Three quadratic polynomials are there. So we can write any one of them here. क्यूबिक पोलिनोमियल में हम कौन सा लिख सकते हैं? दिस वन कैन बी रिटन और दिस वन कैन बी रिटन. Linear polynomial, this one is linear, and yeah, this is the only one which is linear. Binomial में हमें क्या लिखना पड़ेगा? या तो हम ये polynomial लिखेंगे या फिर ये polynomial लिखेंगे. Trinomial में हमें सिर्फ यही polynomial लिखना होगा क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हैं. और जो लास्ट वन है दैट इज मोनोमियल, दैट इज दिस वन. दिस इज द ओनली टर्म एक्स स्क्वायर that can come under monomial because it has only one term in it. Okay, all right, fine. Okay, so let's recall. Now what we are going to do, we are going to perform some operations on polynomial like addition, subtraction, multiplication that you have already learned about. Okay, so उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे. कोएफिशिएंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक अलजेब्रिक टर्म्स. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अगर पता नहीं है तो इफ द पावर्स और या पावर्स ऑफ variables are equal, then their coefficients will get added or subtracted accordingly. ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं. ओके, सो यहाँ पे m क्यूब है, यहाँ पे भी m क्यूब है. सो इसके कोएफिशिएंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि इनके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है. सो 5 माइनस 7 m क्यूब रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 m क्यूब. सिमिलर फॉर एडिशन, अगर यहाँ पे एडिशन का सिंबल होता तो 5 प्लस 7 12 m क्यूब हो जाता ये. ओके, सो दिस इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. बट for multiplication and division, this is not the case. While multiplying or dividing two algebraic terms, we multiply or divide their coefficients. We also use laws of indices. ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे कि 4y रेस टू 3 इंटू 2y² इंटू z इज इक्वल्स टू माइनस 8y रेस टू 5 प्लस z. सो यहाँ पे एडिशन किस चीज की हो रही है? इंडाइसिस की एडिशन हो रही है. 3 प्लस 2 यानी कि 5 बना यहाँ पे, और यहाँ पे z है ही नहीं तो सिर्फ ये z ही बचेगा. और माइनस 4 और 2 की मल्टीप्लीकेशन दैट इज माइनस 8 आएगी. ओके, सो इस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं. किसी ने कोई मैसेज लिखा है यहाँ पे? नहीं. ओके, एवरीबॉडी इज सेइंग यस. ओके, ऑलराइट. ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हमें सिंपल एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन का. क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्ट 5a स्क्वायर माइनस 2a फ्रॉम 7a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6. सो सब्ट्रैक्शन के लिए सी, इन द सेकेंड पॉलिनोमियल वी डोंट हैव कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम मतलब कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगी. ठीक है, सो 7a स्क्वायर में से 5a स्क्वायर गया, 2a स्क्वायर बचा. एंड 5a में से माइनस 2a गया. अभी माइनस 2a, अभी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यानी कि साइन चेंज होता है. सो इसका साइन जो है वो प्लस हो जाएगा. सो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग दिस टू 5a प्लस 2a दैट इज 7a. एंड 6 के लिए कोई यहाँ पे कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 6 एज इट इज रहेगा. या 7a. ओके, ऑलराइट. सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म सब्ट्रैक्शन. अभी मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं? मल्टीप्लिकेशन के लिए minus 2 into 5 is minus 10 and a into a square is a cube, as easy as that. Similarly, this multiplication is also here. So these multiplication you can go through. I will not solve all these solved examples. You can solve it at home also. Okay, so degree of polynomial is 3 and degree of other polynomial is 5. Then what is the degree of their product? What is the relation between degree of multiplicand and degree of multiplier with the degree of the product? So यहाँ पे हमें क्या करना है? ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है जिसकी की डिग्री 3 है.
और दूसरा पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 5 है। अगर उनका हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो रिजल्टेंट जो हमारा पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री क्या रहेगी स्टूडेंट्स? कैन एनीबडी टेल? एक पॉलिनोमियल है, ओके, इट विल बी 8, करेक्ट? एवरीवन इज एग्री विद इट? 8 ही रहेगा, मेरे हिसाब से भी 8 ही रहेगा, ठीक है, इट वुड बी 8 ओनली। ऑल राइट, सो डिवीजन, डिवाइड, डिवाइड 2 plus 2x square divided by x plus 2 and write the answer in the given form. Dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. Okay, so सब लोगों को ये डिवीजन आती है, हम किस तरीके से डिवीजन परफॉर्म करते हैं सब लोगों को पता है? किसको पता नहीं है मुझे बताओ? जिसको पता है वो एस लिखेगा, जो जिसको नहीं पता है वो नो लिखेगा। ओके, आयुष को नहीं आती है, दैट्स क्वाइट ऑनेस्ट। ओके, अच्छी अच्छी बात है। कादम्बरी को आती है, वैष्णवी को नहीं आती है। ऑलराइट, वी विल रिवाइज इट बिकॉज इट इज नेसेसरी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डिवीजन नहीं आती है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। कुछ लोगों को आती है जो कि बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आती है नो वरीज, मैं यहाँ पे फिर से इसे रिवाइज करूंगा। ओके, सो सी स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हमें जाननी पड़ेगी कि व्हाट इज डिवाइडेंड एंड व्हाट इज डिवाइजर। ठीक है, तो जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं दैट इज डिवाइडेंड, एंड जिस पॉलिनोमियल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज डिवाइजर। ओके, सो सबको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिवाइडेंड लिखते हैं, यहाँ पे हम डिवाइजर लिखते हैं। ठीक है, ये पहली स्टेप है, डिवाइडेंड और डिवाइजर आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अगर इसमें उल्टा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो अभी हाउ डू वी प्रोसीड नाउ? देखिए यहाँ पे पहली टर्म क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज फर्स्ट टर्म हियर? इट इज 2x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पहली टर्म जो है वो 2x स्क्वायर है, यहाँ पे पहली टर्म क्या है, x है। नाउ 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करो, अगर 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बताना जरा? 2x आएगा, 2x आएगा स्टूडेंट्स, सब लोग बताओ, सबको समझ में आया यहां तक? हमने क्या किया, डिवाइडेंड के पहले डिजिट को डिवाइजर के पहले डिजिट से डिवाइड किया, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो क्या आया, 2x आया। तो ये जो 2x आया ये मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा क्वोशंट में। ठीक है, तो अभी हमने 3 स्टेप्स कर लिए। पहले क्या किया, डिवाइडर डिवाइजर लिखा, दूसरे स्टेप में हमने पहले डिजिट को या फिर पहले टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करके जो आंसर आया ये यहाँ पे लिखा। अभी तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप ये है कि जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है हमने 2x इस एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, तो 2x से हमें इस कंप्लीट डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है और जो कुछ भी आएगा वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी देखो 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 दैट इज 4x, मैंने यहाँ पे लिखा। ये स्टेप समझ में आई सबको? यहाँ तक सबको समझ में आया? एवरीवन गिव कंफर्मेशन। जिन लोगों को नहीं आता है ये डिवीजन, वो लोगों ने स्पेशली बताना है। ओके, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो अभी पूछो, मैं अभी रिपीट कर दूंगा, बाद में मैं रिपीट नहीं करूंगा। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन अगर करोगे तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कट जाएगा। अगर आपका इस तरीके से पहला टर्म नहीं कट रहा है, किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपका पहला टर्म इस तरीके से नहीं कट रहा है तो मान लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं पे गलती की है। ठीक है, अगर आप सब कुछ अच्छे से सॉल्व कर रहे हो तो आपका पहला टर्म कटेगा, मतलब कटेगा ही, और इसके वजह से ही हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला टर्म हमारा कट गया, तो हमें क्या करना होता है, जो ऊपर का जो डिवाइडेंड है ना हमारा, तो उस डिवाइडेंड में से वो जो नीचे के 2 टर्म्स है वो सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो एक्चुअली 2x इंटू एक्स क्या था, पॉजिटिव 2x स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे हमने उसे नेगेटिव लिखा। यहाँ पे हमने उसे क्या किया, नेगेटिव किया, क्योंकि हम उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। ये 4x जो है ये भी पॉजिटिव था, लेकिन उसका भी हमने साइन चेंज करके उसे नेगेटिव 4x लिखा। सो पॉजिटिव 2x स्क्वायर नेगेटिव 2x स्क्वायर कट जाएगा। अभी 0x में से अगर आप
-4x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, -4x ही बचेगा। तो मैंने -4x यहाँ पे नीचे लिख दिया। ठीक है, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जस्ट जिससे कि आपको और क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, मैंने -4x यहाँ पे लिखा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो नेक्स्ट स्टेप विल बी, अभी इस पहले डिजिट को हमें क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है। अभी -4x डिवाइडेड बाय एक्स क्या आएगा, सब लोग बताओ। -4x डिवाइडेड बाय एक्स क्या आएगा, -4 आएगा। सब लोगों को याद समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो -4 आएगा, तो -4 हमें कहाँ पे लिखना है फिर, -4 हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसके साइड में। 2x हमने पहले ही लिखा था, अभी उसके साइड में हम -4 लिखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी कि इस -4 से इस डिवाइजर को फिर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -4 इंटू एक्स इज -4x एंड -4 इंटू +2 दैट इज -8। ठीक है, तो अभी ये -4x ये +4x कट जाएगा, फिर से कटना ही चाहिए, पहला टर्म तो कटना ही चाहिए। और उसके बाद में +2 +8 10 हो जाएगा। मैंने जैसे कहा था आपको साइन चेंज होगा, तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हुआ, +2 +8 10 हो गया। तो हमारा जो क्वोशंट है वो ये है, हमारा जो रिमाइंडर है ये है, और जो डिवाइडेंड था वो ये था, और डिवाइजर जो था वो ये था। ठीक है, तो हमें 4 टर्म्स मिल गए। देखिए इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते सॉल्व, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म को हम x से डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए कर भी लेंगे हम, बट अगेन इट इज गोना, मतलब ये बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो वहां पे रुक जाना है, कंसिडर इट एज ए रिमाइंडर एंड स्टॉप देयर। ठीक है, मोस्ट मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में ऐसा हो सकता है। तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि इस डिवीजन को परफॉर्म करो, और आया हुआ जो आपके कुछ भी आंसर है उसको इस फॉर्म में लिखो। तो डिवाइडेंड हमें दिया गया है ऑलरेडी, डिवाइजर भी दिया गया है, क्वोशंट हमने फाइंड आउट किया, रिमाइंडर हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखा देखो, सी डिवाइडेंड इज दिस, डिवाइजर इज दिस, क्वोशंट ये है 2x - 4, और रिमाइंडर जो था वो ये था 10। ठीक है, सो इसी डिवीजन को आपको याद रखना है, दिस इज द सिंपल डिवीजन मेथड एज कंपेयर टू लीनियर डिवीजन, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सो डोंट गेट इनटू लीनियर डिवीजन मेथड। एंड आई गेस अगर आपका सिलेबस लाइक लास्ट टाइम जो अभी कोविड की वजह से सिलेबस में रिडक्शन हुआ है ना, तो उसमें से लीनियर डिवीजन मेथड एक्सक्लूड कर दी गई थी लास्ट बैच के लिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, आप लोगों को लीनियर डिवीजन मेथड है या नहीं है, इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं चेक करके आपको बताता हूँ। अगर आपको लीनियर डिवीजन मेथड आपके सिलेबस में है तो हम उसको फिर से सीखेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमने पहले डिवीजन की वही डिवीजन आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी किसी को डाउट, कुछ मतलब डाउट सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन हुआ, तो अभी पूछ लो, मैं फिर से उसे रिपीट कर सकता हूँ। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर मैं आपको कोई भी पॉलिनोमियल दूं तो आपको उसे डिवाइड करता आना चाहिए। ठीक है, ओके, एवरीबॉडी इज कॉन्फिडेंट, ऑल राइट। सो चलो देखते हैं जब प्रैक्टिस सेट में हम, ओके फाइन, सो विल डू वन थिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऑल राइट। So I will give you one question. Okay, you can solve with this method and try finding the answer. So x raised to 2 or x square plus 4x plus 4 should be divided by x minus 2. सॉल्व करो इसे, x minus 2 से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को x-2 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या आता है वो बताना है, रिमाइंडर क्या आता है वो बताना है। एंड अभी ट्राई करो सब लोग, ओके अभी ट्राई करना है, नोटबुक पे लिखो इस एग्जांपल को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइड बाय x-2 करना है। और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो चेक करना है आपको खुद को। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वेल एंड गुड। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आई नीड टू रिवाइज दिस स्टेप। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज ट्राइंग। Write your quotient as q is equals to this and remainder r is equals to this.
Are you students solving the example? I'm waiting for you. Please try it, everyone. Okay, quotient is x plus 2. हम्म। ठीक है, आपको आंसर आ रहा है ना? सब लोगों को आंसर आ रहा है ना? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। ओके, सो लीव इट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ दो। नेक्स्ट वन। अभी प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमें क्या करना है, देखो। हमें प्रैक्टिस सेट 3.1 में क्या करना है? देर आर, अभी, यूजिंग द गिवन लेटर्स, यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डिफिकल्टी इन थ्री स्टेप, डिफिकल्टी इन थ्री स्टेप। ओके, नो प्रॉब्लम। वॉट एवर आई हैव सेड, जस्ट रिवाइज ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा तो वहां पे रिवाइज कर लेना, ठीक है? आई 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 डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? सो अभी हम प्रैक्टिस सेट 3.2 पे आ रहे हैं। तो 3.2 पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, देर आर ए ट्रीज इन अ विलेज लैट, if the number of trees increases every year by b, then how many trees will be there in x years? So इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे हम, बताना जरा स्टूडेंट्स। अभी विलेज में इनिशियली कितने ट्रीज है? ए ट्रीज है, ए नंबर ऑफ ट्रीज। बी नंबर ऑफ ट्रीज हर साल बढ़ते हैं, तो एक्स ईयर्स में कितने ट्रीज होंगे? सर अबव आंसर इज राइट और रॉन्ग? या कदम, इट इज राइट। Yeah, it is not about right or wrong. Yeah, it is right, but it was like, I wanted to give you feel. ठीक है, मैं यहाँ पे अगर x प्लस टू दे देता ना, तो x प्लस टू में आप डायरेक्टली मतलब उसको फैक्टराइज करके मतलब बराबर आप आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे x माइनस टू इसलिए दिया क्योंकि आपको एक दो स्टेप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो आपने अगर सॉल्व किया तो दैट इज गुड। ऑल राइट। सो जो क्वेश्चन था उसमें आयुष ने लिखा है a प्लस बी। ठीक है आयुष, मान लो। चलो अभी हम इस पे डिस्कशन करते हैं। एक गांव में मान लीजिए 10 ट्री है। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? 10 ट्रीज आर देयर। आयुष ने जो फॉर्मूला लिखा है ना, लेकिन आई अप्रिशिएट यू आयुष, राइट? मतलब तुमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है ना, सो आई अप्रिशिएट दैट। तुमने बहुत अच्छे से ट्राई किया, लेकिन बाकी लोग भी ट्राई करो, सोचो कि किस तरीके से हमें इसे फॉर्मूला में लिखना है। देयर आर ए ट्रीज इन द विलेज लैट, और आई डोंट नो व्हाट हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, ओके? If the number of trees increases every year by b, then how many trees will there be in there after x years? तो इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। हाउ डू वी डू दैट? हाउ डू वी डू इट? a into b, okay, somebody is writing a into b. Think about it. मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। मान लीजिए कि अ, हमारे गांव में 10 ट्रीज है। 10 ट्रीज बहुत कम होते हैं, मतलब एटलीस्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए, 2000, 4000, 10,000, मतलब जितने लोग नहीं है उससे कई ज्यादा ट्री होने चाहिए। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हम 10 ट्रीज पकड़ते हैं। ओके, या सो कैलकुलेशन के लिए हमने कितने ट्रीज पकड़े? यहाँ पे 10 ट्रीज है हमारे गाँव में, और मैं हर साल 5 ट्रीज लगाता हूँ। ठीक है, तो पहले साल मेरे गांव में कितने ट्रीज रहेंगे? हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर 1 ईयर? 15।
2 इयर्स के बाद में कितने ट्रीज रहेंगे? 23 इयर्स के बाद में 20 कादम्बरी 20। मैं सिर्फ 5 ट्रीज ही लगा रहा हूं। 3 इयर्स के बाद में कितने रहेंगे स्टूडेंट्स? 3 इयर्स के बाद में रहेंगे 25। 4 इयर्स के बाद में 30। ओके, अभी 35 कोई नहीं लिखेगा। मैं चार मतलब 3-4 साल ही लगाऊंगा, ठीक है। आई एम जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पे क्या है, सी, जो पहले हमारे ट्रीज थे, कितने ट्रीज थे? 10 ट्रीज। उसको साइड में लो, उसको साइड में लो, ठीक है। हम एक साल में कितने ट्री लगा रहे हैं? 5 ट्रीज। और कितने साल के लिए मैंने लगाए? 4 इयर्स के लिए। अभी 5 into 4 कितना होता है? 20। और 20 + 10 30। तो अभी फॉर्मूला कुछ समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? मतलब इनिशियल, ओके। somebody has got the formula. Ayush has got the formula, that is a plus bx is correct. Now you got the formula. ठीक है। मतलब जो इनिशियल ट्रीज है वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम हर साल कुछ ट्रीज लगाएंगे तो उस तरीके से वो बढ़ते जाएंगे। 4, वैष्णवी, व्हाट इज 4? इट इज a plus bx। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर अ Faraday, there are Y students in each row and such X rows are formed, then how many students are there for the parade in all? तो एक रो में Y स्टूडेंट्स है और ऐसे X रोज है। तो बताना क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, व्हाट कैन बी द फॉर्मूला? X इंटू वाई। ओके, कादम्बरी से X इंटू वाई। बाकी लोग बताइए जरा, सोचिए, मैंने जैसे एग्जांपल लिया उस तरीके। सी, आपको कहीं पे भी मैथमेटिक्स का एग्जांपल सॉल्व करना है ना, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं कैसे करूं? तो रियल नंबर लेने मतलब लेना है, ओके। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था ना कि मेरे गांव में 10 ट्रीज है, मैं 5 ट्रीज लगा रहा हूँ हर साल। तो यू ट्राई टू टेक रियल नंबर्स, इजी इजी वन। तो उससे आंसर सिंपल हो जाएगा। अभी किसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं? तो देखो, मान लीजिए कि देर आर वाई स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो एक रो में 5 स्टूडेंट्स है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 5 स्टूडेंट्स आर देयर। और 5 स्टूडेंट्स के 4 रोज है, 4 रोज है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर? 20 स्टूडेंट्स विल बी देयर। ठीक है। तो मैंने 20 आंसर निकाला कैसे? 5 into 4 करके। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? x into y करना है। वेरी गुड। सो इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस ऑफ डिजिट number is m and n respectively. Write the polynomial which represents the 2 digit number. अभी इस दिस इज रियल टफ, रियल टफ वन। ठीक है, अगर ये किसी ने सॉल्व कर लिया ना तो फिर मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब इसे पढ़ा है, या फिर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। अभी समझ लो क्या है। द टेंस एंड यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज m एंड n रिस्पेक्टिवली। तो टेंस प्लेस का डिजिट कौन सा है? m है। और यूनिट्स प्लेस का डिजिट कौन सा है? n है। तो हमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में उस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। कैन एनीबडी राइट? किस तरीके से हम लिखेंगे? कोई हिंट? कोई मतलब ट्राई तो करो कुछ, मतलब एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। सबसे पहली बात, ऑल राइट, somebody has written 10m plus n। सबसे पहली बात, सबको क्वेश्चन समझ में आया कि क्या कहना चाहता हूं मैं? ओके, कादम्बरी has got the question, आयुष has got, okay, आयुष has got answer also, विशाल, ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो आयुष ने जो आंसर लिखा है ना वो एकदम करेक्ट आंसर है, 10m plus n। अभी कैसे सर, मतलब आयुष ने लिखा तो है लेकिन कैसे? मान लीजिए कि मेरा जो नंबर है, टू डिजिट नंबर, ये 63 है। ठीक है। तो आयुष ने क्या लिखा? 10m plus n। इस फॉर्म में इस नंबर को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे m क्या है? m है 6।
सो 10 इंटू सिक्स प्लस एन क्या है 3, 10 इंटू सिक्स इज 60, 60 प्लस 3 यानी कि 63। समझ में आया? 10m प्लस एन हम इसे क्यों क्यों लिखते हैं? अभी 99 लिखना है तो m की वैल्यू क्या रखनी है हमें? m की वैल्यू 9 रखेंगे, n की वैल्यू 9 रखेंगे। 10 इंटू 9 इज 90 प्लस 9 इज 99। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या लिखना है? 10m plus n. This should be the representation of the two digit number in its polynomial form. ठीक है, तो अभी होमवर्क आपके लिए कुछ है। Add the given polynomials, subtract the given polynomials, मल्टीप्लीकेशन का हम लेंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और जो सिक्स्थ वन है वो हम लेंगे। सिर्फ ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। मैं आपको गूगल क्लासरूम पे ये होमवर्क ऐड कर दूंगा अभी। इज दैट ओके? ठीक है, चलो तो students, that's it for today, and I hope you enjoyed the lecture, and I'm again sorry for yesterday. Okay, fine. So students, you can leave the class. That's it. Bye bye.